आप सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I am Medhavi Nigam. Welcome you all to your own channel, Achievers Success Month. I hope you all are doing well. In our last session, we have discussed about database objects, that is tables, queries, forms, and reports, relationship between database objects, data types, manipulating data, DDL and DML commands, etc. Our today's topic is perform operations on table, in which we will cover inserting data in the table, editing records in the table, deleting records in the table, sorting data in the table, relationships in table, types of relationships, creating and editing relationships, referential integrity एंड लास्ट फील्ड प्रॉपर्टीज. साथ ही हम सब इन सभी को एसक्यूएल स्टेटमेंट से भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल. लास्ट हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एक नया डेटाबेस बनाया जाता है और उस डेटाबेस के अंदर हम कैसे अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कि वो टेबल जो हमने बनाई थी और उसमें हम लोग ने जो थोड़ा बहुत डाटा एंटर मैंने आपको करके दिखाया था, अगर बाद में भी अगर हमें कभी उसमें डाटा सेव करना पड़े तो हम कैसे उसमें डाटा सेव करेंगे. सो लेट्स मूव टू आवर सॉफ्टवेयर. लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट डाटा टेबल. डबल क्लिक ऑन इट एंड हेयर come to the last row and you can start entering your data over here. यहाँ पे आप अपना डाटा क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. In this way you can enter your data. और अगर आपको इसी डाटा को सेव करना हो तो click on file and come to save current record. Click on this. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा. नाउ क्लोज द विंडो. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग डाटा इन टेबल यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम ये भी सीखेंगे कि हम जो भी डाटा एंटर करते हैं या जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर में, वही सारे एक्शंस हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. तो जो हम आज एसक्यूएल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे डाटा को इंसर्ट कराने के लिए, उसके लिए हमारा सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम. इंसर्ट इनटू कमांड है और उसके बाद आपको टेबल नेम देना होता है कि आपको किस टेबल में एंटर करना है. एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द फील्ड नेम्स, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, जो भी आपकी फील्ड्स हैं जिसमें आपको डाटा प्रोवाइड करवाना है. एंड देन वैल्यूज, कि उन पर्टिकुलर फील्ड्स में आपको क्या क्या वैल्यूज डलवानी है. And then semicolon. Your every SQL statement ends with semicolon. क्योंकि अगर आप semicolon नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो सिंटेक्स रन करेगा, जो आपका ये कमांड रन करेगी, उसमें आपको एरर शो हो जाएगा. तो सिंपली जब हमें SQL स्टेटमेंट रन करानी होती है तो आप SQL स्टेटमेंट लिखिए उसको, लेकिन सेमीकोलन से एंड ज़रूर करिए. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. In this, you have to go on Tools and then select SQL. जैसे ही आपने SQL select किया, a window of execute SQL statement opens and in command to execute column, you have to write your command. The command that we have to write, that I have already typed. So I just copy it from here and paste it here. And what is the command? Insert into student data, that is your table name. Then you have to provide the name of the fields, that is student ID, student name, student class, roll number and address. Then values, whatever the values you want to insert in all these fields, that you can write over here. And after writing all this, click on execute. As you clicked on it, it showed you command successfully executed. It means your data has been inserted.
So if you want to check that whether your data has been inserted or not, what you have to do for that, close this window first and then double click on your table. Once you clicked on it, see the data that you have entered 1005 Sneha 1021 Raniba, that data has been inserted over here. So in this way, using the SQL statement also you can insert your data in the table. Next topic is editing records in the table. अगर आपको टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को एडिट करना है, so what is the purpose of edit? The purpose of editing is to update your data. Editing is used for updating the data in the table. It means if you have entered a wrong data या आपने wrong data enter कर दिया है या फिर आप कोई और डाटा इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग के थ्रू भी उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं. Let's see how. Suppose you want to edit your library table. Double click on this table and here you are getting your record. So if you want to make changes in your price, you can make it 550 from 450. If you want to change the number of pages, you can change the number of pages over here. If you want to change author ID, you can change author ID. In this way, you can make the particular changes. Close this window. Now it is asking the current record has been changed. आपने इस record में क्या किया है? Changes करे हैं. So do you want to save the changes? So if you want to save the changes, click on yes. Otherwise no. So I want to save the changes, so I am clicking on yes. Okay. Now what we have to do? We have to edit our data using the SQL command, and that is our next topic. Editing records in table using SQL statements. So if you have to edit your record using SQL statement, for that the syntax that is provided to you is this. That is update, then you have to provide your table name. Set, you have to provide the field name and you have to write the data over here जो भी आपको बदल के डालना है. Then where, कहाँ पे आपको वो डाटा चेंज करना है, उसका फील्ड का नेम और फिर वैल्यू. So let's see how we will do it. Again, you will go to tools option, click on SQL. Again you got the same window. Let's take our command from here. Copy this command from here and paste it over here. So what we want to do, we have to update student data. Student data table जो हमारे पास हमें वो अपडेट करनी है. उसके अंदर हमें क्या चेंज करना है, स्टूडेंट नेम चेंज करना है और नेम डालना है हमें सानिया. और कहाँ डालना है हमने सानिया नेम, जहाँ पर हमारा रोल नंबर है 14. So execute this, it will show you command successfully executed. So it means your data has been changed. To see your data that whether it has been changed or not, close this window, click on your table name and you will see that yes, where the roll number 15 was there, it was Sanya. So your data has been updated, that is through SQL statements you have done it. Our next topic is deleting records in the table. अगर हमें टेबल के अंदर अपना कोई भी डाटा डिलीट करना है, so we can use delete command. So delete is used for deleting records in the table. So whenever you need that yes, you want to delete something in your table, you can use delete command to delete it. So what you have to do, open your table. If you need that you have to delete this whole record, just select the whole record, click over here and you can click on delete rows. Okay, so it is asking you, do you want to delete the selected record, क्या आप ये selected data delete करना चाहते हैं, click on yes and your that entire data will be deleted. Okay, cross it and whenever you will open it again, you will see that the data that you have deleted, that is gone and you are just left with
one record over here. Next topic is deleting records in table using SQL statements. SQL statements का इस्तेमाल करके हम अगर डाटा को डिलीट करना चाहें, so how we will do this? The syntax that is given to us over here is delete from table name where field name value. You have to write the table name over here, then you have to write कहाँ से आपको क्या डिलीट करना है. So you have to provide here field name and then the value that you have to delete. So let's see how we will perform this. Go to tools and click on SQL. You got this? Then come to the commands where you have written your command. Copy this command from here and paste it. Okay. So you have here delete from student data. Student data table name है आपका जिसमें से आपको delete करना है और आपको क्या delete करना है अपनी student ID. कौन सी student ID? That is 1003. Then click on execute. It showed you command successfully executed. It means your record of 1003 has been deleted. So check it. First of all, close this window. Double click on your student data table and you will see you are not able to see over here the record of 1003. So that data has been deleted with the help of delete command, that is a SQL statement. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डाटा इन द टेबल. अब सॉर्टिंग सुनते ही आपके माइंड में होगा दैट ये सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो ओवर हेयर ऑल्सो यू कैन सॉर्ट योर डाटा. हेयर व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग? अरेंजिंग डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड्स वैल्यूज. फील्ड के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं उनके बेस पर. और यू कैन से दैट सॉर्टिंग हेयर इज अ टूल. यहाँ पे सॉर्टिंग क्या एक टूल है दैट लेट यू ऑर्गेनाइज योर डाटा, जो कि आपको आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है. और जब भी आप अपना डाटा सॉर्ट करते हैं उसका मतलब होता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. सो हाउ यू विल डू इट? जस्ट डबल क्लिक ऑन योर एनी टेबल टू ओपन इट. We have one record over here. Let's type some more record over here so that we can arrange it. Okay, so we have 3 records over here and save this firstly. Now again double click on this table. As you have to sort your data, just come over here and it has the option sort. Click on this. It is asking you to provide the details. Write field name कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको करना है. सो सपोज आई चूज एम्प्लॉय नेम. ओके, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑर्डर वेदर यू वांट इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. सेलेक्ट डिसेंडिंग एंड देन प्रेस ओके. ओके, सो इट इज द सेम बिकॉज नेम जो होता है उनका कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है. सो अगेन क्लिक ऑन दिस and click on employee ID and then you can choose descending and click OK. So as you choose descending, see your data is sorted. 1006 on the top and 1003 is at the bottom. So in this way you can apply sorting in your table if you have to arrange your data according to your own wish. Close this table. Sorting data in table using SQL statements.
So let's see what is the SQL statement that will help us to sort the data. The statement is select, then you have to provide the field names from, कहाँ से आपको वो field name select करनी है, that table name you have to provide, and then order by. हम जब भी sorting करते हैं तो sorting के लिए हमारी order by command जो है वो ज़रूर यूज़ होती है, that whether you want to arrange your data in ascending or descending. By default your data in SQL is always arranged in ascending order, so you can use DESC to arrange it in descending order. Let's move to practical. Go to tools, SQL, and here you have to write your command. So we will copy our command from here that we have already written and paste that command over here. So your command is select student roll number, student address from student data. Student data is your table name, right? And then order by. किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है आपको? स्टूडेंट रोल नंबर के अकॉर्डिंग, in descending order. After that, click on execute. It showed you command successfully executed. Close this window and check your result in student data, that whether it has been arranged in descending order or not, right? तो स्टूडेंट डाटा में रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने जो जो वैल्यूज़ दी थी, आपने दिया था स्टूडेंट एड्रेस और वो, तो वो उसने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। अगर आप इसी को कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, just change the columns over here. और हम यहाँ से ये descending हटा देते हैं. So let's see whether it will do any changes or not. Okay, execute it. It showed us what? Column not found. Student roll number in statement this. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट रोल नंबर के भी ये चेंज करने पड़ेंगे जो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे. And now execute it. It showed you command successfully executed. Close this window and now double click on the table and check. So there is no effect. By default your data is already arranged, right? Our next topic is relationships in table. अब टेबल हम इतनी सारी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेबल्स हैं वो आपस में रिलेटेड होती होंगी. तो जब टेबल्स आपस में रिलेट होती हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप हेल्प्स यू टू कंबाइन डाटा फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स. रिलेशनशिप आपको मदद करता है कि दो अलग अलग टेबल्स में से आप डाटा को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. हाउ रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड? दे आर डिफाइंड लिंक्स दैट एसोसिएट टू टेबल्स थ्रू अ कॉमन फील्ड. ये वो डिफाइंड लिंक्स होते हैं जो कि एक कॉमन फील्ड के जरिए दो टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं. ए रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू टेबल्स. एक जो रिलेशनशिप होता है वो दो टेबल्स के बीच में कब इस्टेब्लिश होता है? जब एक टेबल फॉरेन की का इस्तेमाल करती है और वो फॉरेन की किसको इंडिकेट करती है? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दूसरे टेबल की प्राइमरी की को. जब हम लोगों ने फॉरेन की का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था कि किस तरीके से एक टेबल में आपके पास कॉलम होता है जो कि फॉरेन की इस्तेमाल कर रहा होता है और दूसरे में होते हैं प्राइमरी की. तो जब फॉरेन की प्राइमरी की को इंडिकेट कर रही होती है तो इसका मतलब वो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है. जैसे कि अ स्कूल डेटाबेस हैविंग टू डिफरेंट टेबल्स. एक स्कूल डेटाबेस में दो डिफरेंट टेबल्स होती हैं, स्टूडेंट एंड कोर्स. जैसे कि ये रहा, एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और कोर्स है. ठीक है, कि कौन से स्टूडेंट ने क्या कोर्स लिया हुआ है. एक टेबल है हमारे पास कोर्स जिसमें कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है.
तो यहाँ पे जो कोर्स आईडी है वो क्या है, एक फॉरेन की है, और कोर्स टेबल के अंदर जो हमारी कोर्स आईडी है वो क्या है, एक प्राइमरी की है। तो जब एक फॉरेन की एक प्राइमरी की को इंडिकेट कर रही होती है तो वो क्या कर रही होती है, आपस में दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अब हमने ये पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन रिलेशनशिप भी बहुत तरह के होते हैं। सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। देन वन इज वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। ये 4 रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ रिलेट करने में मदद करते हैं। So let's understand all these 4 relationships one by one. The first one is one-to-one relationship. जब हम one-to-one relationship की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड जो टेबल 1 में होता है उसके साथ केवल एक मैचिंग रिकॉर्ड होता है दूसरी टेबल में, और इसी तरीके से टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड जो होते हैं वो टेबल 1 के हर एक रिकॉर्ड के साथ एक ही रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि जो आपका A1 है, that is creating relationship with B1, A2 with B2 and A3 with B3। तो इसका मतलब दोनों टेबल्स में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है वो हर रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक सिंगल रिकॉर्ड के साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, इज गिवन रोल नंबर। हर एक स्टूडेंट के पास केवल एक ही रोल नंबर होता है। आप लोग स्कूल्स में हैं या आप लोग कहीं भी जाते हैं, आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर आईडी, एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है। आपके पास कभी भी 2 आईडी या 2 रोल नंबर नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक के साथ दूसरे कई सारे रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि जो हमारी ये टेबल 1 है, ठीक है, इसके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3। लेकिन इसमें जो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो टेबल 2 के साथ क्या कर रहा है, एट ए टाइम 2 के साथ अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना रहा है। जैसे कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, एक टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, तो हम वहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कई सारे रिकॉर्ड्स का दूसरी टेबल के कई सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच हो जाना। तो इसमें जो हमारे पास टेबल 1 दे रखी है, इसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। ऐसी टेबल 2 में भी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो हर एक रिकॉर्ड क्या कर रहा है, A1 2 के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है B1 B2 के साथ, A2 B2 B3 के साथ, A3 B3 B4 के साथ। इसी तरीके से हर एक रिलेशन क्या कर रहा है, कई सारे रिलेशंस के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ रिलेशन बना रहा है। इसी तरीके से B1 जो है वो A1 A4 के साथ रिलेशन बना रहा है, B2 A1 A2 के साथ रिलेशन बना रहा है। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट्स गिव्स टेस्ट। एक स्टूडेंट कई सारे टेस्ट दे सकता है और कई सारे स्टूडेंट्स मिलके एक टेस्ट दे सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट इज मैनी टू वन। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी वन टू मैनी की, और ये रिलेशनशिप उसका उल्टा है, मैनी टू वन, यानी कि कई सारों का किसी एक पर्टिकुलर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश होना। तो जो हमारे पास यहाँ पे टेबल्स दे रखी हैं, टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 में हमारे पास क्या है, टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं, जबकि हमारे पास टेबल 2 में 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, A1 A2 एक सिंगल रिकॉर्ड B1 के साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसी तरीके से A3 A4 आर स्टैब्लिंग रिलेशन विद B2 एंड A5 A6 आर स्टैब्लिंग रिलेशनशिप विद B3। The other example with which you will be able to understand it properly, that is students enrolls in course। कई सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप्स। अब हमने ये तो पढ़ा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स का यूज़ क्या होता है, कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, हर तरह के रिलेशनशिप में क्या क्वालिटी होती है,
कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर अब टेबल के अंदर हमें रिलेशनशिप्स को बनाना हो या एडिट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला होता है ऐड टेबल। हमें सबसे पहले टेबल ऐड करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, let's move to over here, click on tools, and here you are getting the option relationships. Click on relationships. As you clicked on it, it is providing you to add tables. आपको इसमें क्या करनी है, tables add करनी है। तो जब आपको tables add करनी होती है तो आप क्या करेंगे, select any one table and click on add। तो जैसे ही आपने एक टेबल को सिलेक्ट करके ऐड किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, वो टेबल आई और उस टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है वो सारी फील्ड्स उसने आपको शो कर दी। ओके, अगेन इंसर्ट टेबल एम्प्लॉय। इसी तरीके से एम्प्लॉय के भी आपको सारी रिलेशनशिप शो कर दी। तो ये तो हो गया टेबल्स को ऐड करना। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना। तो एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई द कॉमन फील्ड्स ऑफ टू टेबल्स। दो टेबल्स की कॉमन फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल है और ये क्या स्टूडेंट डाटा टेबल है। तो जो हमारे पास थर्ड टेबल है, चलिए हम इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। क्या इसमें से हमारे पास कोई डाटा आपस में मैच कर रहा है, नहीं, इसमें भी हमारे पास कोई भी डाटा मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके साथ हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सके। सो क्लोज दिस विंडो एंड इट इज आस्किंग डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। और क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता तो आप नो कर दीजिए कि अब अभी हम कोई भी चीज़ स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, रिलेशन नहीं बनाना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टेबल ओवर हेयर। आप टीचर टेबल बना लीजिए। टीचर आईडी, इसको आप न्यूमेरिक सेट कर लीजिए। मेड दिस फील्ड एंट्री यस। टीचर नेम, उसको आप वेर कर सकते हैं। टीचर सब्जेक्ट, उसको भी आप वेर रख सकते हैं, मेक इट यस। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हर एक टीचर क्या है, किसी स्टूडेंट से जुड़ी हुई होंगी, तो हम इसमें स्टूडेंट्स की आईडी को भी ऐड कर सकते हैं एंड मेक इट यस। नाउ सेव इट एंड गिव इट अ नेम टीचर। ओके, इट इज आस्किंग फॉर अ प्राइमरी की, तो आप इसमें टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाइए एंड नाउ क्रॉस इट एंड क्लिक ऑन yes to save the changes. Okay, now again go to tools, click on relationships, select your student data, add it, select teacher and add it। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दोनों में स्टूडेंट आईडी कॉमन है। क्लोज दिस विंडो। So we found the common fields in the two tables. Now what we have to do, click on the common field in one table। एक टेबल में आपको क्या करनी है, कॉमन फील्ड को क्लिक करना है एंड ड्रैग इट टू द कॉमन फील्ड इन अदर टेबल, और दूसरी टेबल की कॉमन फील्ड तक उसे ड्रैग करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं ड्रैग करूँगी दूसरी टेबल के वहाँ पे, इसको छोड़ दूँगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक
रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। If you are not able to see it clearly, let me make some difference in this space. Now you will be able to see that yes, it has created a relationship. ठीक है, और इसने रिलेशनशिप कौन सा बनाया, वन एन, एन का मतलब होता है मैनी, तो इसने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट कई सारे टीचर्स से पढ़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेव रिलेशनशिप्स। अगर आपको रिलेशनशिप्स को सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको उस रिलेशनशिप विंडो से एग्जिट करना है। एंड हाउ यू विल एग्जिट इट? क्लिक ऑन क्लोज एंड इट विल आस्क यू, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? क्लिक ऑन yes, that yes, I want to save the changes. Next is referential integrity. Referential integrity क्या होता है? A system of rules that a DBMS uses. एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स जो कि DBMS इस्तेमाल करता है ये पक्का करने के लिए कि रिलेटेड टेबल्स में जो हमने रिलेशनशिप्स बनाए हैं वो क्या है, वैलिड है, यानी कि दे आर टोटली करेक्ट, एंड दैट यूजर्स डू नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डाटा। और ये भी पक्का करता है कि यूजर्स गलती से बाय मिस्टेक उस रिलेटेड डाटा को कहीं डिलीट या चेंज ना कर दें। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन फॉरेन की, ये भी इंश्योर करता है कि फॉरेन की में जितनी भी वैल्यूज हैं दे ऑल मैच द वैल्यूज इन प्राइमरी की, वो सब प्राइमरी की वैल्यूज के साथ मेल खाएं, मैच करें। Ensures that the data in the database, ये भी पक्का करता है कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है remains uniformly consistent, वो हर जगह एक जैसा रहे, accurate बिल्कुल सही रहे, usable जिसे कि आप बार बार इस्तेमाल कर सकें, even after that data in it has been changed, चाहे आप उस डाटा को बदल ही क्यों ना दें लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे consistent, accurate और usable बनाए रखता है। What are the conditions for referential integrity? Referential integrity के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मैचिंग फील्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल। जो आपकी सबसे पहली टेबल होती है उसमें से जो मैचिंग फील्ड होती है वो हमेशा अपने पास एक प्राइमरी की रखे और हैज़ अ यूनिक इंडेक्स, या एक पर्टिकुलर एक अच्छा स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए। रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डाटा टाइप, जिन फील्ड्स को आपने आपस में रिलेट किया, जैसे अभी आपने स्टूडेंट आईडी को दूसरी टेबल की स्टूडेंट आईडी से रिलेट किया तो उनका आपस में डाटा टाइप सेम होना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक होना चाहिए दोनों का, अगर वैर कैर है तो वैर कैर होना चाहिए दोनों का। एंड थर्ड इज बोथ टेबल्स बिलोंग टू द सेम ट्रिपल ओ डाटाबेस। ट्रिपल ओ का मतलब यहाँ पे है ओपन ऑफिस ORG। तो यहाँ पे ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि आप दो टेबल्स जिनके बीच में आप रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं वो दोनों एक ही डेटाबेस की हों। इफ द टेबल्स आर लिंक्ड टेबल्स, खास तौर से तब जब वो टेबल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। दे मस्ट बी टेबल्स इन बेस फॉर्मेट, वहाँ पे टेबल्स होना ज़रूरी है। एंड यू मस्ट ओपन द डेटाबेस इन विच दे आर स्टोर्ड, और आपको हमेशा उन टेबल्स को वहीं ओपन करना चाहिए जिस डेटाबेस में वो स्टोर हुई है, सेव्ड है, जिससे कि आप उसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आराम से अप्लाई कर सकें। अगर दूसरे फॉर्मेट्स में आपके पास अवेलेबल होगा, मतलब एक डेटाबेस में आपके पास टेबल है फिर आप दूसरे डेटाबेस की टेबल के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाने को नहीं मिलेगी। यू कांट अप्लाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इफ यू हैव टेबल्स फ्रॉम टू डिफरेंट डाटा बेसिस। What rules you must follow? First is, you can't enter a value in the foreign key field of related table that doesn't exist in the primary key of primary table. अगर आपकी foreign key primary key के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो आप उसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। You can't delete a record from primary table. आप एक रिकॉर्ड प्राइमरी टेबल में से तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि उससे मैचिंग रिकॉर्ड किसी और टेबल में एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट वन इज, यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू। आप एक प्राइमरी की वैल्यू तब तक चेंज नहीं कर सकते
इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अगर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ और भी कई सारे रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फील्ड प्रॉपर्टीज। जो अभी हमने इतना सारा प्रैक्टिकल किया उसमें हम लोग क्या करते थे, फील्ड प्रॉपर्टीज को एंटर करते थे, जैसे हम येस नो करते थे या लेंथ को चेंज करते थे। सो ऑल दीज फील्ड प्रॉपर्टीज वी विल टॉक अबाउट देम राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम हमें वो समझ में नहीं आया कि वो किस लिए होती हैं। सो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस देम। फील्ड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हर टेबल के अंदर हम जितनी भी फील्ड नेम्स डाल रहे हैं, हर फील्ड की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज एंट्री रिक्वायर्ड, देन लेंथ, डेसिमल प्लेसेस, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल। सो दीज आर द बेसिकली 5 फील्ड प्रॉपर्टीज जो कि हमें सेट करनी होती हैं व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ टेबल, जब भी हम एक टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड जो फील्ड होती है उसमें हमारे पास येस और नो का ऑप्शन होता है। व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन येस, इसका मतलब हम उसमें वैल्यूज एंटर करने की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम नो ऑप्शन यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर आस्किंग फॉर द नल वैल्यूज, हम नल वैल्यूज के लिए बोल रहे हैं। इसमें आप फिर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लेंथ। When we are talking about length, it determines the maximum length of the data that a particular field can have. आप ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप मैक्सिमम कितनी लेंथ तक का डाटा डाल सकते हैं, और जब आप उसमें एक बार लेंथ फिक्स कर देते हैं तो आप उस पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ से ज़्यादा डाटा उसमें नहीं डाल सकते। नेक्स्ट इज डेसिमल प्लेसेस। This property specifies the number of decimal places permitted in this field. इस particular field में कितनी values आप डाल सकते हैं वो, और कितने डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल्स, अप टू 3 डेसिमल्स, आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। Then is default value. It is used to specify the default value for a field or control. उसमें आप एक पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। आप कई बार क्या होता है, आप कई बार सिस्टम्स लेते हैं तो कई बार सिस्टम्स में आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करवानी है तो आप उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू एंटर ए वैल्यू, ओके, मेक इट डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर टेबल। तो आपको क्या करना है, फिर आपकी वो वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप ऐड होती चली जाएगी, आपको उसमें बार बार ऐड करनी नहीं पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेटिंग इज यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ द डाटा। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे डाटा के लुक को कंट्रोल करना। इसलिए इस फील्ड में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं अगर हम चाहें तो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो लीव द फॉर्मेटिंग पार्ट, राइट। देन इज व्हेन वी सेट वन और मोर फील्ड प्रॉपर्टीज। जब हम एक या एक से ज़्यादा फील्ड प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे मैम डाटा वैलिडेशन का क्या मतलब होता है। वेल, डाटा वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट ओनली वैलिड डाटा एज पर सेट नॉर्म शुड बी अलाउड। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज सेट करी हैं उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही उसमें जो है डाटा एंटर होना चाहिए। उसके अलावा उन नॉर्म्स को छोड़ के, उन वैलिड डाटा को छोड़ के कोई भी डाटा आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आप फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखा करिए कि आप जो भी सेट कर रहे हैं वो आपको याद रहे कि हाँ हमने इसमें क्या लेंथ सेट करी है, क्या प्रॉपर्टीज में हमने लगाई है, अब उसमें न्यूमेरिक लिया है, वैरचर लिया है, जिससे कि जब आप अपनी टेबल में डाटा एंटर करें तो आपको उस समय प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही। हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे रिवाइज ज़रूर करिएगा और हो सके तो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करिएगा। I hope you were able to understand each topic properly. Still, if you have any doubt, तो अगर आपको हल्का सा भी कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है, प्लीज़
कमेंट इन द कमेंट एरिया। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको हमारी अगली आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप जिसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, तो प्लीज़ प्रेस इट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।